Good afternoon, everyone. Sorry, my actually Wi-Fi is not working today, so I had to connect with some other network so I can take the session. Okay, so let's start our peak state programming. How are you all doing today? Good, Elizabeth. How are you? Hmm? We're going good. How are you? Let's start our peak state program. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, Yes. faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very Yes, nice, very I'm nice, the very winner. nice. Yes, I'm the And you winner. say to yourself, We all I are am the winner. winners. I'm the winner. I'm the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on. Run. Come on, run faster. Yes. Run faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on. Fast. Yes. Come on. Fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on. Faster. Yes. Come on. Fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Stop. I'm the winner. Thank you. We all And are the now, winners. say to yourself, yes, Yes, I am the winner. we all are the winners. Yes, I am the winner. I am the winner. I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, I repeat. can, I will, I must. I will. I must, I can, I will, I must. must. So let me share with you. Yesterday I was attending the live session with Tony Robbins. So everything was okay. I mean, everything went really well. But thing that I took from it कि क्या मुझे सीखना चाहिए, बहुत सारी चीजें ऑफकोर्स सीखने को मिली, बट द मेन थिंग आई लर्न कि आप कभी भी कोई भी सेशन में जाते हो तो सेशन में आपका पीक स्टेट में होना बहुत जरूरी है. तो टोनी रॉबिन्स का ये पूरा जो लाइव था वो स्टार्ट ही म्यूजिक के साथ हुआ. लोग डांस कर रहे, लोग हंस रहे, खुश है, एकदम अपने पीक स्टेट में है, यानी एकदम हाई फ्रिक्वेंसी जोन में है सब लोग. तो जब आप हाई फ्रिक्वेंसी जोन में होते हो तो आपका सीखने का जो होता है वो बहुत हाई लेवल हो जाता है, यानी अलर्ट माइंड. तो कल मैंने बहुत अच्छे से ये बात समझी कि कितना जरूरी है हम लोगों के लिए भी ये पीक स्टेट में आना. एंड आई एम सो थैंकफुल टू राजन सर कि उन्होंने हमें ये चीज को इंट्रोड्यूस किया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पीक स्टेट. इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट दूसरे भी जो कोच होते हैं, मैंने कई सारी कोचों का देखा, तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले डांस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब आप डांस करते हो आप अपने वैसे ही आप अपने हाई फ्रिक्वेंसी जोन में आ जाते हो. बट हम लोग डांस नहीं करते हैं. मैं इनिशियली आई ट्राइड कि हम 2-3 दिन कर रहे थे, फिर नोबडी वाज टेकिंग मच इंटरेस्ट, तो फिर मैंने छोड़ दिया. बट यू वोंट बिलीव कि जब आप डांस करके कुछ चीज स्टार्ट करते हो, यू आर इन अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी जोन. जब आप डांस करते हो या ये पीक स्टेट प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट हमारे पास ये है कि जिससे हम अपने आप को पीक स्टेट में ला सकते हैं. तो प्लीज बी हियर एंड ऑलवेज डू पीक स्टेट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अलर्ट, फॉर यू टू गेन 100% आउट ऑफ द सेशन. आपका जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ज्यादा, उसका जो होगा उसमें से लेना वो बढ़ जाएगा जब आप पीक स्टेट में होते हो अपने.
Okay, so let's start. I just wanted to share that how much important it is. ये वैसे पीक स्टेट प्रोग्रामिंग टोनी रोबिन्स का ही है कि जैसे वो ही करवाते हैं अपने हमेशा, वो कोई भी सेशन लेते हैं पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी को पहले वो पीक स्टेट में लाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. एवरीवन relax your body completely. Relax it fully by taking some deep breaths. अगर बीच में मेरी आवाज या कुछ ऐसा होता है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलना, क्योंकि आईज बंद होती है तो चैट पे पता नहीं चलेगा. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट. मैंने ये चीज भी नोट की कि जब हम आंखें बंद करके अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो ऐसे ही आंखें खोल के अभी मैं करती हूँ, उसमें भी बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है. अगर आपको दिल से अपनी दिल की गहराई से फील करना है तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन डू ग्रेटिट्यूड. Very, very important. So, and everybody turn on your videos. Only one video is on. ये सेशन का तो रूल ही पहले से था कि आप सबको अपना वीडियोस ऑन रखना है. I mean, I understand if there is some problem or something, but please on कीजिए if you can. All right, let's start. Thank you, thank you, thank you, God, for this beautiful, amazing life, full of love, full of abundance in every area, full of peace, full of harmony, full of wealth and prosperity. Yes, I feel like I'm swimming in the ocean of abundance. I'm swimming in the ocean of magics and miracles. Thank you, God. हर एक चीज में जब भी आज मैं नेचर के साथ कनेक्ट होती हूँ या जैसे भी, तो मैं देखती हूँ कि मिरेकल के बाद मिरेकल हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक मिरेकल्स को मैं देख पाती हूँ. उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये सारे मैजिक्स मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पानी के अंदर कितना मैजिक है. पानी के अंदर जो भी बोल के मैं पानी पीती हूँ वो तुरंत फुलफिल हो जाता है. जो भी मेरी बॉडी के लिए मैं बोल के पानी पीती हूँ, या इवन कभी मेरे बच्चों को भी मैं वो पानी के अंदर उसको एनर्जाइज करके विद ग्रेटिट्यूड जब देती हूँ, उनके भी सारे हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज चले जाते हैं. इतना अच्छा जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जहाँ पे हम खुद एक मैजिशियन जैसे बन गए हैं. ये सब आपकी कृपा है. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मेरे हाथों के लिए, मेरे पैरों के लिए, जो दिन रात काम करते हैं. ये पैरों की वजह से मैं इतना डांस कर पाती हूँ, इतना मजा, इतना आनंद मैं ले पाती हूँ अपनी लाइफ में. So thank you for my legs. कितना कुछ करती हूँ मैं ये पैरों से. सुबह उठने के साथ उसी से मेरा दिन शुरू होता है कि पैर जमीन पे रख के मैं आगे बढ़ती हूँ, थैंक यू स्टेप्स लेती हूँ. सारा कुछ काम मैं चल के करती रहती हूँ, खड़े होके. पूरा दिन मेरे पैर मेरे बहुत काम आते हैं.
इतने प्यारे से पैरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी ये जो पूरी बनावट है, जो आपने जिस तरह से पैरों को मेरे बनाया है इतना वंडरफुली, कि उसको कैसे भी मोड़ मोड़ सकती हूँ बैठने के लिए, उठने के लिए, तो कितना कुछ मैं कर सकती हूँ उनकी वजह से। मेरे एंकल एंड नी जॉइंट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे टोस के जो छोटे छोटे से जॉइंट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फीट के लिए, आपने कितनी जबरदस्त तरीके से फीट की जो स्किन है मेरी, पैरों की तलिए की जो स्किन है इतनी थिक बनाई है कि वो कुछ भी ले सकते हैं। जितना कुछ हार्श चीजें होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं पूरी तरह से। यानी ये कितना अद्भुत है, कितना मिरेक्युलस है कि जिस तरह से ये मेरा बॉडी पूरा बना हुआ है मिरेक्युलसली। एक एक चीज उसके अंदर आपने ऐसी बनाई है जो मिरेकल से कम नहीं है। स्किन की ही इतनी सारी लेयर्स बनाई है, उसके अंदर फैट्स डाले हैं जिसकी वजह से वो सारी जो कुछ बाहर से होता है वो एब्जॉर्ब कर सके। और इतनी थिक स्किन के अंदर भी अगर कुछ कभी लग भी जाता है या कुछ हो जाता है, वो खुद अपने आप कब अपने आप को हील कर लेता है पता भी नहीं चलता। तो मेरी ये पूरी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जो तलिए की जो स्किन है इतनी थिक जो लेयर के अंदर है, वो स्किन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है जब कभी मुझे कोई शू बाइट या कुछ हो जाता था तो मैं शूज को हाथ में लेके ऐसे ही इतने थिक या पत्थरों वाले या कंकर वाले रोड पे भी ऐसे ही चलती थी बचपन में, मुझे बिल्कुल याद है। इवन कभी कभी अभी भी ऐसा होता होगा कि हाँ शू बाइट हुआ है तो चलो हाथ में लेके शूज जब चलते हैं, तो यही थिकनेस ऑफ द स्किन दैट टाइम सर्वाइव्ड। आई कुड सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। कि कुछ कंकर या कुछ लगते भी थे पैरों के ऊपर, या तो जमीन बहुत ज्यादा गर्म होती है तो मुझे इतनी गर्म नहीं लगती बिकॉज ऑफ माई थिक स्किन ऑन माई फीट। हाउ वंडरफुल इट इज, हाउ मिरेकुलस जिस तरह से आपने उसकी स्किन को बनाया है। मेरे जो टो नेल्स है वो भी कितने काम के हैं, कितना कुछ जब आता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओवरऑल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं पूरी तरह से। इट्स नथिंग लेस देन अ मिरेकल द वे यू मेड दिस बॉडी। ये पूरे मसल्स, ये बोन्स मेरे पैरों के अंदर जो आपने बनाए हैं वो पूरी बॉडी का अच्छे से जो वो है वेट वो बेयर कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये पूरा चीज पूरा बनाया है आपने, वो मसल्स जहां पे जो मसल्स होने चाहिए वो परफेक्टली प्लेस्ड है। कि कितना वो बाहर का जो भी प्रेशर है या स्ट्रेस है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए, उस तरह से पूरे मसल्स बने हुए हैं। मेरे ये नी जॉइंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे से वो मेरा हमेशा मुझे उठने बैठने सब कुछ में वो मदद करता है। मेरे थाइस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे काफ मसल्स के लिए शुक्रिया। मेरे काफ के अंदर जो बोन्स है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
एक जो बड़ा वाला फीमर बोन होता है, एक अनदर वन, वो बीच में जो स्पेस है दोनों बोन्स के बीच में, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से पूरा स्केलेटन बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर पूरा ये स्किन का लेयर, सारे मसल्स जिस तरह से बने हुए हैं, इट्स नथिंग लेस देन मिरेकल। तो जहां कुछ भी जब भी कभी भी होता है, इवन जो हेयर है मेरे पैरों के ऊपर या मेरी पूरी बॉडी के ऊपर, उनका भी कुछ ना कुछ मकसद है कि प्रोटेक्ट करना मेरी स्किन को, ठंडी गर्मी सभी चीजों से बचाना। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे थाइस के लिए शुक्रिया, थाई मसल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भी कितना कुछ मेरे लिए करते हैं। दिन रात में यही पैरों का काम, पैरों से ही काम करती हूँ। वो इसका इम्पोर्टेंस तब पता चलता है जब मुझे कुछ ऐसी लग जाती है पैरों के ऊपर, जब मुझे एहसास होता है कि पैर नहीं होते तो क्या होता। कई सारे ऐसे लोग हैं, बट हमें ये सब मिला है। हम बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स हैं कि हमारी पूरी बॉडी इतनी अच्छे से इंटैक्ट है, इतनी हेल्दी है, इतनी एनर्जेटिक है, इतनी एक्टिव बॉडी हमें मिली है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पैरों के लिए। उसी की वजह से मैं दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ, एरोबिक एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज, योगा, सब कुछ कर सकती हूँ। So thank you so much for my beautiful legs. मेरे हिप्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो मुझे बैठने के, उठने में, सब चीजों में बहुत कुछ स्ट्रेस वो भी एब्जॉर्ब करते हैं पूरे दिन के अंदर। कुछ न कुछ मकसद से ही इस तरह से वो बने हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने पूरी स्किन को भी, जो जो जगह पे उसको थिक होना चाहिए, जो जगह पे वो पतली स्किन होनी चाहिए, वो सब कुछ ताना बुना जो आपने किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मार्वेलस बॉडी को जितना मैं डीप में जाती हूँ, तब पता चलता है कि हाउ अमेजिंगली इट इज क्रिएटेड। जिस तरह से मेरा पूरा इंटेस्टाइन बना हुआ है, ये इंटेस्टाइन की जो है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो इतना लंबा है कि एक बहुत, यानी मुझे नहीं पता कितनी उसकी मेजर या लेंथ होगी, बट आई नो इट इज सो मच लॉन्ग इन द लेंथ। बट किस तरह से वो मेरे बॉडी के अंदर उसको, जिस तरह से आपने टॉयल करके उसको बनाया है, एक कोयलिंग की तरह उसको पूरा बनाया गया है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जिसके अंदर फूड के अलग अलग तरीके से वो एब्सॉर्ब होता है, जो माइक्रोविलाइज के अंदर से पूरा न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब होता है, और जिस तरह से पूरा जो ऐसी चीजें मैं फूड के अंदर लेती हूँ जो मेरे बॉडी के काम की नहीं है, जो वेस्ट है, वो लार्ज इंटेस्टाइन से नहीं होके बॉडी के बाहर निकलती है। ये पूरा जो इंटेस्टाइन आपने बनाया है, ये भी कुछ मार्वेलस से कम नहीं है। द वे इट वर्क्स, जो भी ये खाना डाइजेशन की जो पूरी प्रोसेस है, कितनी अद्भुत है। इट स्टार्ट्स इन द माउथ,
पूरे एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। वो जिस तरह से फूड पाइप के थ्रू ये खाना पूरा, उससे मेन तो वही स्टार्ट होता है माउथ के अंदर, उसका ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, जो हमारे टीथ जिसमें हमें मदद करते हैं। च्यू करके जब हम फूड को नीचे लेके जाते हैं, किस तरह से वो स्टमक एसिड्स रिलीज होते हैं, इसोफेजियल जो ओपनिंग होती है वो ओपन होती है और स्टमक के अंदर पूरा फूड जाता है। वहां पे थोड़ा टाइम रहता है और पूरा एसिड के साथ मिक्स होके फिर उसकी ओपनिंग नीचे से ऊपर से बंद होके नीचे से स्टार्ट होके एंड देन इट गोज डाउन into the other areas of the digestion. इसमें लिवर का इतना बड़ा काम होता है, स्प्लिन का इतना काम है, और डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, पैनक्रिएटिक जूस, पेनक्रियास का इतना बड़ा काम होता है डाइजेशन के लिए। वो सब कुछ, किसी का काम है फैट्स को डाइजेस्ट करना, किसी का काम है कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, और वे इतने छोटे सूक्ष्म जिसको हम देख भी नहीं सकते, उस तरह से वो फूड का पूरा ब्रेक डाउन होता है डाइजेशन के अंदर। हाउ मिरेकुलस इट इज द वे इट वर्क्स। And then large intestine along with the water pushes it down. और फिर वो हमारे एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। ये जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस है, मार्वेलस इट इज। पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से ये काम करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड for my digestive system, for my liver, for my pancreas, for my stomach, for my small and large intestine. For my anus. मेरी किडनीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से वो दोनों किडनीज काम करती है। उसके अंदर भी कितनी सूक्ष्म तरीके से सब कुछ होता है। पानी का जो फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर, उसके अंदर भी जिस तरह से न्यूट्रिशन के हिसाब से सब कुछ एब्सॉर्ब होता है। किडनी सारी चीजों को, बहुत सारी चीजों को वो मेंटेन करती है बॉडी के अंदर। Thank you, thank you, thank you to my kidneys for filtering out all the liquids. और जिस तरह से फिर गोल ब्लैडर के अंदर, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जिस तरह से यूरिन स्टोर होता है, और जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब अर्ज आती है एंड देन वी यूरिनेट। ये पूरा सिस्टम कितना मजेदार बनाया है। ये सारे ऑर्गन्स कितने स्ट्रॉन्ग बनाए हैं, उनके मसल्स वगैरह। जिस तरह से ये सारी चीजें बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, इट्स नथिंग लेस देन मिरेकुलस। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो एड्रिनल ग्लैंड्स है मेरी बॉडी के अंदर, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। पूरा हार्मोनियसली ये बॉडी काम करती है। एक एक ऑर्गन इसके लिए इतने इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हार्मनी में वो सब मिलके मिलजुल के मुझे अलाइव रखने के लिए पूरा काम करते हैं पूरे दिन। 24/7 दे वर्क। जब मैं सो जाती हूँ तब भी मेरा डाइजेशन सिस्टम
बहुत सारी रिपेयरिंग, बहुत सारा कुछ काम करता है। I love my body. Amazingly it works. Thank you, thank you, thank you, God. For also all of my other organs like lungs. Lungs जिस तरह से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के फेंकते हैं और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर, स्पेशली एक एक सेल्स के अंदर ऑक्सीजन जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ माय लंग्स। वो जिस तरह से इंट्रिकेटली, अगर हम ट्री का सिस्टम देखते हैं, ट्री का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत कुछ सिमिलर है जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं तो ये भी कोई अद्भुत से कम नहीं है। जिस तरह से हमारा सब चीजों का हार्मोनियसली कुछ न कुछ कनेक्शन है, और जो सिंक्रोनिसिटी आपने जो पैदा की है पूरे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। How synchronously everything works in the nature and in our body. सारी चीजें ये 5 एलिमेंट्स में से बनी हुई है, वो भी कितना मार्वेलस है। ये 5 एलिमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस 5 एलिमेंट्स। मदर अर्थ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मार्वेलस मैग्निफिसेंट एयर के लिए। पानी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि जो भी ऑर्गन्स है, जो भी चीजें हैं मेरे बॉडी के अंदर, वो पानी के बिना वो कुछ काम नहीं कर सकते। हाउ अमेजिंग इट इज। जब मेरा बॉडी में अगर बाहर से पानी नहीं डालती हूँ तो मेरा बॉडी अपने आप पानी का जो रिसाइकलिंग है वो बढ़ा देता है और अंदर ही अंदर पानी को वो स्टोर करने लगता है। और जिस तरह से वो फिर भी पानी के बिना भी उस टाइम पे, जब मैं पानी नहीं देती हूँ बहुत टाइम के लिए, तो भी वो अपने बॉडी को किसी न किसी तरह से वो चलाता ही रहता है। बट देयर इज अ लिमिट। यस, पानी इतना ज्यादा जरूरी है मेरे जीवन के लिए। So thank you, thank you, thank you for the glorious water that we drink, that we use throughout the day. और हम कितने ब्लेस्ड है कि हमें पानी बहुत आसानी से मिल गया है। ये स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो बाहर, जो मेरे बॉडी के अंदर है। अगर स्पेस नहीं होता तो हार्मोनियसली मेरे सारे ऑर्गन्स काम नहीं कर सकते थे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द फायर एलिमेंट। जब कभी कोई वायरस या फॉरेन बॉडी भी एंटर करती है तो मेरा बॉडी अपने आप टेम्परेचर हाई करके उसके साथ फाइट करने में लग जाता है, उस वायरस को पूरी तरह से मार के बाहर निकाल के फेंकने के लिए वो अपनी सारी एनर्जी लगाता है। And I don't have to do anything. I just need to give my body that rest, that nutrition, water, to just do its own work. मुझे कुछ नहीं करना होता है, बस उसको हमेशा अच्छे पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देने हैं, दैट्स इट। वो सब कुछ कर लेता है अपने आप। How marvelous it is. Thank you so much. Thank you for the fire element in my body. सूरज का, चंद्रमा का, पूरे आकाश का, ये तारों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। And this whole life is a game. And मुझे ये लीला में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे एंजल्स और गार्डियंस जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं ये जर्नी में फॉरवर्ड होने के लिए, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, लेट्स डू अवर EFT। आज EFT में आई नो सम ऑफ यू माइट नॉट हैव अ मैरिड रिलेशन, बट मैं सोच रही थी कि हमारे मैरिड रिलेशन के लिए आज हम EFT करेंगे। तो मे बी यू कैन डू फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, सो स्पाउस के लिए आज हम EFT करते हैं कि स्पाउस अगर देखने जाओ तो हमारी लाइफ में उनका कितना इम्पोर्टेंस है। अगर पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस है उनकी जगह पे है, पेरेंट्स हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है उनकी जगह पे इम्पोर्टेंट है, बट हम लाइफ किसके साथ पूरी बिताते हैं? मोस्ट ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट विथ अवर अदर हाफ, विथ अवर स्पाउस। तो उनके साथ का जो हमारा रिलेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी हम ये EFT कर सकते हैं। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हमारे अंदर, देखो हमारा जो रिलेशन भी है वो हमारे ऊपर ही है। ओके, अगर मैं अपने स्पाउस के लिए, उनकी पॉजिटिविटी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो जैसे है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करती हूँ और उनकी एक एक चीज के लिए, उनकी एक एक बातों में पॉजिटिविटी ढूंढती हूँ, तो मेरा ये रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन है मेरी लाइफ के अंदर, राइट? अगर वो रिलेशन में कहीं ना कहीं पे मैं एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ बट उनको जिस तरह से वो है उनको एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तो वो भी इसीलिए वो रिलेशन कहीं ना कहीं पे उसमें कोई जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इसकी वजह से होंगे। We don't realize how important our this relation is. So let's start our EFT today। हम अपने स्पाउस के साथ जो हमारा रिलेशन है, जो हमें अपने ऊपर जो काम करना है उस पे आज हम काम करेंगे कि हम अपने अंदर से किस तरह से प्यूरिफाई हो सके, किस तरह से हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जीज को निकालें और अपने स्पाउस को पूरी तरह से जैसे वो है उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। उसके लिए आज हम EFT करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Even though sometimes I don't accept my spouse the way he is, आप अपना अपना लगा लीजिए, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। ओके, but I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though जब कभी भी ये रिलेशन में कोई उतार चढ़ाव आते हैं, जब कभी भी कोई इश्यूज आते हैं और मैं अपने स्पाउस को ब्लेम करने लग जाती हूँ या ऐसे मोड में चली जाती हूँ जहां पे मुझे लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, या मैं अपने ईगो के अंदर आके कोई ऐसी चीजें सोचने लगती हूँ जो हमारे दोनों के रिलेशन के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल होते हैं, बट आई स्टिल deeply and completely love, accept and honor myself. Okay, now take a deep breath. And let's now start our sequencing. Even though sometimes I feel rejected in my relationship, I feel disrespected in my relationship sometimes, और मैं खुद भी डिसरिस्पेक्ट करने लगती हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं
अपने स्पाउस को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। कभी कभी उनकी बातों से मैं चिढ़ जाती हूँ, या जो कुछ कुछ चीजें वो बोलते हैं तो उसमें मैं डिसएग्री कर जाती हूँ। But I still deeply and completely love, accept and honor myself. कभी कभी मैं चिढ़ के गुस्सा भी कर लेती हूँ। और कभी कभी ये रिलेशन के अंदर कुछ होता है तो मैं खुद हर्ट भी फील करने लगती हूँ। और ये रिलेशन से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। Rather than giving, I always want something from this relation. Rather than giving love, I always expect love. But despite of all this, ये सब के बावजूद भी मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ एंड प्यार करती हूँ। I understand that in any relation I have to give first. तो मेरे स्पाउस के साथ जो मेरा रिलेशन है उसमें भी मुझे पहले देने की जरूरत है। ये मैं पूरी तरह से समझती हूँ और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अपने ऊपर लेती हूँ। I have to give love in order to receive it back. I have to give respect in order to receive respect back. I have to trust in order to be trusted. I know I'm not giving as much as I have to. जितना मुझे देना चाहिए ये रिलेशन के अंदर मैं नहीं देती हूँ। कहीं ना कहीं पे कुछ कमी रह जाती है मेरे बीइंग के अंदर या मेरे डूइंग के अंदर। और इसीलिए ये रिलेशन जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं है। But today I take a full responsibility for this relation. And I deeply and completely love, accept and honor myself despite of all this. And I do understand that the most important relation that I have to cultivate is with myself. मुझे अपने आप को पहले पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, अपने आप को पूरी तरह से प्यार करना है, जिसकी वजह से मेरे सारे रिलेशन, अगर मेरा खुद के साथ रिलेशन अच्छा है तो मेरे स्पाउस के साथ, मेरे बच्चों के साथ वो रिलेशन और निखरता जाएगा। So I take the full responsibility to give love to myself also, rather than expecting it from somebody else, from spouse, from kids, from parents. एंड हाँ, मुझे पता है मैं अपने आप को कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। But I deeply and completely choose to accept myself today.
मैं जैसी भी हूँ अपने आप को पूरी तरह से प्यार करती हूँ। अपने आप को मैं भर भर के प्यार देती हूँ और वही प्यार फिर छलकने लगता है मेरे सारे डूइंग्स के अंदर। वही प्यार मैं भर भर के अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, सबको देती हूँ, जो भी मेरे इंपॉर्टेंट रिलेशन है मेरी लाइफ के अंदर। आई नो कभी कभी ऐसी चीजों, ऐसी हरकतों की वजह से मैं थोड़ी सी निराश हो जाती हूँ हम दोनों के रिलेशन को लेके। कभी कभी उनकी कोई कोई बातें मुझे नहीं पसंद आती है, और उनको मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ वो बातों को। और कहीं ना कहीं पे मैं अपने स्पाउस को चेंज करना चाहती हूँ कि वो मेरे हिसाब से सब कुछ करने लगे और वो मेरे हिसाब से जिए। बट आई डीपली एंड completely love and accept myself. I honor myself despite of all this. And I take the full responsibility for my relation. मैं सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस को जो कहीं भी मैंने पास्ट में अपने स्पाउस के लिए क्रिएट किए थे, वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं जाने देती हूँ। जो भी लिमिटेशंस मैंने अपने ऊपर बांध ली, जिसकी वजह से मुझे लगा कि बस ये रिलेशन ऐसा ही रहेगा या इसमें और कोई चेंजेस नहीं आ सकते, ये कभी लविंग नहीं हो सकता या रिस्पेक्टफुल जितना चाहिए वो नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं पे अपने आप के ऊपर मैंने लिमिटेशंस बांध ली। और जो रिलेशन के अंदर अलाइवनेस होनी चाहिए वो एक मंडेन एक्टिविटी बन गई। वो रिलेशन ही एक तरह का मंडेन हो गया बिकॉज ऑफ माई ओन लिमिटेशंस, कि इसको और अच्छे से निखारना वो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसको आज भी इतना ही, जब इनिशियली जब हम लोग यंग थे और जब उसमें इतनी फ्रेशनेस, इतनी अलाइवनेस थी, वैसा ही रिलेशन में आज भी कर सकती हूँ। बट मैंने ही अपने सारे आडंबरों को अपने ऊपर थोप दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों को अपने ऊपर थोप लिया, और मैंने इतना लिमिट कर दिया अपने आप को, अपने रिलेशन को, कि उसमें से पूरी अलाइवनेस कहीं ना कहीं पे चली गई और वो रिलेशन एक मंडेन रिलेशन बन के रह गया। जबकि नाउ आई रियलाइज एंड आई अंडरस्टैंड कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस रिलेशन इज। अगर मैं इसको अलाइव रखती हूँ हमेशा, मेरी लाइफ कितनी बेहतरीन हो जाएगी। So I release all the limitations that I put on myself. I release all the limitations that I put on this relation because of whatever. कभी कभी समाज का सोच के भी मैं अपने ये रिलेशन के ऊपर लिमिट डाल देती हूँ। वो सारे लिमिटेशंस को मैं आज रिलीज करती हूँ। वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं रिलीज करती हूँ जो मुझे रोकते हैं उनको ये बताने से या उनको ज्यादा प्यार करने से, मुझे रोकते हैं वो सारे नेगेटिव इमोशंस को मैं आज बाहर निकाल के जाने देती हूँ। And I fill myself with love
There is an infinite well of love within the deep center of myself. And वही प्यार में भर भर के अपने स्पाउस को देती हूँ. और ये रिलेशन को मैं बेहतरीन से भी ज्यादा ऊपर लेके जा सकती हूँ. And this whole life is so wonderful with him being with me, staying always joyful, loving, respectful. And I trust the divine power within me. I trust and invoke the divine power within me. For this twin flame between me and my spouse. जो हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट जो कनेक्शन है, वो हमेशा बना रहे. और ये रिलेशन हमेशा बहुत लविंग एंड रिस्पेक्टफुल, एक प्राउड रिलेशन, जॉयफुल रिलेशन के लिए मैं अपने आप को अलाउ करती हूँ. I allow myself to forgive whatever didn't work in the past. I allow myself to forgive my spouse if any time I created hurt or anything like that in the past. And I ask for forgiveness. I apologize to him whatever I might have done in the past, which was not good for our relation. And I allow myself to freely give love to my spouse. And as Jesus said, you always receive in the same measure that you give. So I give love, I give respect. In my being, I am a loving, caring, respectful person. And so it is, and so be it. Okay. So आज हम ये हो पुनो पुनो भी इसके ऊपर करेंगे कि हमने अपने स्पाउस के बारे में बहुत कुछ बुराइयां भी की होगी किसी के सामने, मे बी जाने अनजाने, या हमने अपने स्पाउस के बारे में उनको एक्सेप्ट नहीं किया होगा पूरी तरह से. कहीं ना कहीं पे कुछ कमी होगी, इसीलिए अगर रिलेशन आज मंडेन भी है तो कहीं ना कहीं पे वो कुछ ना कुछ कमी है हमारे ही डूइंग के अंदर या हमारे ही बीइंग के अंदर. तो आज हम उसके लिए हो पुनो पुनो करेंगे. तो आप अपने स्पाउस का चेहरा ध्यान में रखो and let's do it together. Okay, so let's start. अपने दिल के ऊपर हाथ रख के. Oh, it's 555. Okay. अपने दिल के ऊपर हाथ रख के. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I release all those negative energies within me. Imagine करो कि सूरज की रोशनी आपके ऊपर है और उनमें से पूरी पॉजिटिविटी is entering within you. सूरज से सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है और वो पॉजिटिविटी आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को रिप्लेस कर रही है.
एक एक रोम रोम को पॉजिटिविटी से भर दिया है, और जो भी नेगेटिविटी है वो जुप करके मदर अर्थ के अंदर लीन हो जाती है, एब्सॉर्ब हो जाती है। जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी, जब कभी भी हमने अपने स्पाउस के बारे में या उनके साथ हमने कुछ भी जैसे एंगर में बात की होगी, या कभी हम उनसे इरिटेट हुए, या हम एनॉय हुए उनसे, उनकी कोई हरकत की वजह से, उनके साथ हम दिन रात रहते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उनके बारे में कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच लेते हैं, या कुछ नेगेटिव बोल देते हैं या कर देते हैं। वो सारे इंस्टेंसेस के लिए आई नो इट्स नॉट ओनली वन टाइम में, मुझे नहीं पता हो सकता है कि नहीं, बट I still deeply and completely ask for forgiveness from my heart. Take a deep breath and imagine the positivity is going within with each breath. एक एक सांस के साथ पॉजिटिविटी आप अंदर फील कर रहे हो, एक एक सांसों के साथ आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार से भर लेते हो। And now imagine that this love from your heart, you are giving it to your spouse. You're sending the love. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry for all those times. अपने स्पाउस का चेहरा ध्यान में रख के बोलो कि आई एम सॉरी फॉर ऑल दोज टाइम्स when I scolded you, or when I got angry on you, or when I got irritated, annoyed, or when I got jealous, or anything like that, or any negative emotion. Please forgive me for all those instances. And thank you for being in my life. Thank you for supporting me always. Thank you for bringing so much joy into my life by just being in my life today. Thank you for so caring for me. Thank you for loving me unconditionally. Thank you. And I love you. I love you unconditionally for what you are, and not the way I want you to be. I love you and accept you exactly the way you are. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Okay. So let's briefly do our mirror work and then we move on to our book reading session. I think we can only do it for 15 minutes, but that's fine. Let's do it. So मिरर के सामने आज हम रिलेशनशिप के बारे में जितना हो सके इतने अफर्मेशंस करेंगे. Okay, so I love you, Alifia. I really, really, really love you. I love you and I accept you exactly the way you are. तू जैसी भी है, सब चीजों के साथ मैं तुझे वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ. With whatever you are going through, I accept you the way you are and the ways you are not. Yes. There is so much harmony in my relations. Yes.
all of my relations are very harmonious. There is a harmony between all of my family members. There is a peace. There is love and respect in my relations. We all love and respect each other. And I always invite very loving and satisfying relationships in my life. Yes, I love and accept the people as they are. I love and accept my spouse the way he is. Yes, I am loving, I am caring and kind and compassionate. I am powerful, and I know I take the full responsibility for myself, for my life, for my relations. And there is an infinite well of love within the deep center of my heart. And I send this love to my spouse, my kids, and to everyone who is so close to me. वो वही प्यार धीरे 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 सब जगह पे फैलता है. Yes. I send this love to my neighbors, to my hospitals, to the prisons. ये love अपने आप expand होता ही जाता है, होता ही जाता है. And I send it to everybody. मेरे colleagues को, मेरे work colleagues को, जो भी मेरे managers हैं, मेरी सारी family को, जितने भी मेरे family के अंदर है, in-laws के अंदर, सबको ये प्यार मैं भेजती हूँ अपने दिल से. Okay, let's now move on to our. Okay, let's do a little bit of अपने money को बहुत प्यार देना है. Thank you for all the money that I've been given throughout my life. Thank you. And thank you for this check to be fulfilled. And I'm so happy and grateful that it is done. Thank you, thank you, thank you. All right, let's start our book. So यहाँ से हमें पढ़ना था feeling of your inner body is formless, limitless and unfathomable. अंदर की बॉडी की जो फीलिंग है वो लिमिटलेस है, फॉर्मलेस है, अनफेथमेबल है. तो शायद अभी हम उसको फील कर ना भी पाए, बट धीरे 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 हम जितना उसको प्रैक्टिस करेंगे हम उसको फील भी करते जाएंगे. स्वाति, यू वांट टू रीड? यहाँ से रीड करना है. फीलिंग ऑफ योर इनर बॉडी इज फॉर्मलेस. Okay. The feeling of your inner body is formless, limitless, and unfathomable. You can always go into it more deeply. If you cannot feel very much at this stage, pay attention to whatever you can feel. Perhaps there is just a slight tingling in your hands or feet. That's good enough for the moment. Just focus on feelings. Your body is coming alive. Later we will practice some more. Later we will practice some more. Please open your eyes now, but keep some attention in the inner energy field of the body even as you look around the room. The inner body lies at the threshold between your form identity and your essence identity. Your true nature. Never lose touch with it. तो हमेशा इनर बॉडी, भले आप आंखें खोल के अब कुछ और कर भी रहे हो, तो हमेशा अपनी इनर बॉडी के ऊपर ध्यान देना है. जब कभी भी आप कुछ भी, मतलब आपकी ये प्रैक्टिस ही लगेगी कि आपको हमेशा अपनी इनर बॉडी के अंदर क्या एनर्जी फील्ड है, क्या फील कर रहे हो. मुझे कई बार ये टिंगलिंग सेंसेशंस होती रहती है पूरे दिन में, तो मुझे नहीं पता था कि हाँ वो भी मैं अपने आप को फील कर रही हूँ, कहीं ना कहीं पे वो एनर्जी को फील कर रही हूँ. सो लेट्स अगेन टेक अ पॉज. आंखें बंद करके अपनी इनर एनर्जी बॉडी फील्ड को हम फील करेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट.
ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द बॉडी. तो यहाँ से वापस पढ़ते हैं. Why have most religions condemned or denied the body? It seems that spiritual seekers have always regarded the body as a hindrance or even as sinful. Why have so few just a minute. Why have so few seekers become finders? On the level of body, humans are very close to animals. All the basic bodily functions, pleasure, pain, breathing, eating, drinking, defecting, Defecating, sleeping, the defecating. defecating, sleeping, the drive to find a mate and procreate, and of course birth and death. We share with the animals. A long time after their falls from a state of grace and oneness into illusion, humans suddenly woke up in what seems to be an animal body, and they found this very disturbing. Don't fool yourself. You are no more than an animal. This seems to be the truth that was sharing them in the face, but it was too disturbing a truth to tolerate. Adam and Eve saw that they were naked, and they become afraid. Unconscious denial of their animal nature set in very quickly. The the threat that they might be taken over the powerful instinctual drives and revert back to complete unconscious was indeed a very real one. Shame and Hmm. shame and Taboos. Shame and taboo. Shame and taboos appeared around certain parts of the body and badly functions, especially sexuality. The light of their consciousness was not yet strong enough to make friends with their animal nature, to allow it to be and even enjoy that aspect of themselves, let alone to let alone to go deeply into it to find the divine hidden within it, the reality within the illusion. So they did what they had to do. They began to disassociate their uh, disassociate from their body. They now saw themselves as having a body rather than just being it. हाँ, तो यहाँ पे ये बताया, किसी ने इनको पूछा कि अगर सारे रिलीजन में क्यों ऐसे बॉडी को कंडेम किया गया है, यानी डिनाई किया गया है, क्यों ऐसा है कि स्पिरिचुअल जो सीकर्स होते हैं वो हमेशा बॉडी को ऐसे ही हिंड्रेंस और सिंफुल भी मानते हैं कि बॉडी इज कुछ ऐसा है, मतलब हिंड्रेंस उसको समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जाने में उनको बॉडी कहीं ना कहीं पे रोकती है, उनको ऐसा लगता है. तो ऐसा क्यों है? व्हाई हैव सो फ्यू सीकर्स बिकम फाइंडर्स? तो ऐसा क्यों है? तो किसी ने पूछा, तो एकार्ट ने क्या जवाब दिया? ऑन द लेवल ऑफ बॉडी ह्यूमंस आर वेरी क्लोज टू एनिमल्स. यानी हम लोग अगर देखने जाए तो हमारे जो बॉडीली फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एनिमल्स के थ्रू. वो लोग भी ये सब कुछ चीजें करते हैं जो हम करते हैं, और यानी हम वो सब चीजें करते हैं जो वो लोग करते हैं. स्लीपिंग, डेफिकेटिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, ये सब चीजें हम भी करते हैं, वो भी करते हैं. हमें और उनमें एक माइंड का ही फर्क है. अगर बॉडी देखने जाओ तो पूरी सिमिलर है. तो सेम तरीके से वो भी जैसे प्रोक्रिएट करते हैं, मेट करते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं, वैसे ही हम ह्यूमंस भी प्रोक्रिएट करते हैं, अपने ही वंश को बढ़ाते हैं, जिसको बोलते हैं. तो ऐसा हुआ कि लॉन्ग टाइम आफ्टर देयर फॉल फ्रॉम द स्टेट ऑफ ग्रेस and oneness into illusion, humans suddenly woke up in what seemed to be an animal body. धीरे 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 वो ग्रेस था, जो बॉडी का ग्रेस था कि हाँ ये बॉडी इतनी ग्रेसफुल है जो हमारे साथ है, उसकी ग्रेसफुलनेस को समझने की बजाय दे स्टार्टेड फॉलिंग इनटू इल्यूजन, कि उनको लगा कि नहीं ये तो एनिमल बॉडी है. एंड देन उसको उन लोगों को लगा कि ये तो मतलब जो एनिमल बॉडी वो डिस्टर्बिंग लगा उनको कहीं ना कहीं पे. तो धीरे धीरे धीरे
वो जो बॉडी को कहीं ना कहीं पे टैबू भी उसमें आगे बना दिया, सेक्सुअलिटी को लेके कितना सारा टैबू है आज भी हमारे समाज के अंदर, जबकि ये सारी चीजें नॉर्मल नेचुरल है एनिमल्स के अंदर, बट हम ह्यूमन ने उसको कितनी कॉम्प्लिकेट कर दी। तो ये सब कुछ क्यों हुआ? कहीं ना कहीं पे हमने डिनायल किया अपनी बॉडी के, इसीलिए ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हुई। सो लेट्स रीड फ्रॉम हियर व्हेन रिलीजियंस arose. When religions arose, this association become even more pronounced as the you are not your body belief. Countless people in East and West throughout the ages have tried to find God, salvation, or enlightenment through denial of the body. This took the form of denial of sense, pleasures, and sexuality, in particular fasting and other ascetic practices. They even inflicted pain on the body in an attempt to awaken or punish it because they regarded it as sinful. In Christianity, this used to called mortification of the flesh. Other tries to escape from the body by entering trance states or seeking out of body experiences. Many still do. Even the Buddha is said to have practiced body denial through fasting and extreme forms of asceticism for 6 years. But he did not attain enlightenment until after he had given up this practice. तो ये यानी फिर ये सब थोड़ी ज्यादा रिलीजन की यहाँ पे बातें हो रही है कि कैसे कई कई लोगों ने एनलाइटनमेंट के लिए या साल्वेशन के लिए या गॉड को पाने के लिए फिर अपनी बॉडी को इतना डिनायल किया, यानी फास्टिंग करने लगे, अपनी बॉडी के ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट करने लगे, और कोई कोई ऐसी चीजें करने लगे कि सेक्सुअलिटी को पूरी तरह से डिनाई कर दिया, वो प्लेजर्स या पेन वो सब कुछ डिनाई करके वो कुछ कुछ ऐसा अपनी बॉडी के ऊपर करने लगा। उनको लगा कि ऐसा करने से हमें साल्वेशन मिलेगा या एनलाइटनमेंट मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है। यानी बुद्धा ने भी 6 साल ये प्रैक्टिस की थी, बट उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिला जब तक उन्होंने ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, यानी थ्रू फास्टिंग एंड एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ एस्केटिसिज्म, यानी पूरी तरह से बॉडी को डिनाई करना और ट्रांस स्टेट में लेके जाना कि बॉडी है ही नहीं वहां पे, ऐसे स्टेट में वो लेके जाते थे अपने आप को। यानी आपने सुना होगा कि जैसे ये बहुत बड़े जो महर्षि सब होते हैं तो अपनी बॉडी को ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं, एंड देन दे ट्रैवल इवन विदाउट द बॉडी एंड दे डू थिंग्स लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं पे अगर बॉडी को डिनाई करते हैं तो वो प्रैक्टिस से आप साल्वेशन तक नहीं पहुंच सकते। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा कुछ बताया है इन्होंने। तो let's read this paragraph and then we'll conclude the session. The fact is that no one has even become enlightened through denying or frightening the body or through and out of body experiences. Although such an experience can be fascinating and can give you a glimpse of the state of liberation from the material form, in the end you will always have to return to the body where the essential work of transformation takes place. Transformation is through the body, not away from it. This is why no true master has even advocated frightening or leaving the body through, although their mind-based followers often have. तो माइंड के बेस्ड जो फॉलोवर्स होते हैं वो कभी कभी बॉडी को डिनाई करते हैं, बट जो ट्रू मास्टर होते हैं वो कभी बॉडी को दे डोंट एडवोकेट फाइटिंग और लिविंग द बॉडी, यानी बॉडी को छोड़ना या बॉडी से फाइट करना, उसमें वो नहीं बिलीव करते। तो यहाँ पे पूरा ये इनका समझाने का वही मतलब है कि आप एनलाइटनमेंट या साल्वेशन या जो भी है चीजें आप अटेंड कर सकते हो थ्रू
like through the experience of transformation through the body, यानी बॉडी से ही वो मिलता है, तो बॉडी को डिनाई करने से नहीं मिलता. तो वी विल कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर. थैंक यू सो मच. आज थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ इन द बिगिनिंग, आई एम सॉरी अबाउट दैट, but luckily I had some other internet connection that I could join with. So अभी भी मेरा वो जो वाईफाई है वो नहीं चल रहा है, but that's fine. It worked out. So thank you so much. Thank you so Thank you, much. ma'am. Love, light, and abundance to all of you, and love you all. What's in the Love chat you. message? Thank you so much, Babita ji. Thank you. Okay, see you all at the same time. Love you all.